Thank you, Raghav. Good evening, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you all this evening to this highly anticipated and very exciting session that is going to happen right now. It is my privilege that we have with us the UP's most successful business entrepreneurs, the business leaders who have actually transformed and gone global. So it is the thing that they have truly taken is like they have taken the path which is less traveled and dared to follow their dreams in creating huge opportunities and huge businesses through their determination, perseverance and leading from the starting. वो कहते हैं ना कि बड़ा आदमी नहीं बनने की सोच होनी चाहिए आपके पास, कुछ बड़ा काम करने की सोच होनी चाहिए और हमारे पैनलिस्ट ने ये करके दिखाया है. So we have the very excellent panelists out here with us this evening. But before we start, are you all excited for this session? I can see a very beautiful audience out here. तो हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ तालियों के साथ so that we can invite our speakers out here. Before we start, let's call our moderator first, Mr. Sachin Sahani, the very dynamic serial entrepreneur out here. Mr. Sachin Sahani is an accomplished serial entrepreneur in the fitness and wellness industry and the founder of 3 successful ventures, Keros, Glamour Zone and Health Zone. Sachin's brands are making waves in the market and Health Zone and Glamour Zone, headquartered in Lucknow, are fast-growing chains of wellness and beauty salons. Keros, India's first brand of super snacks and superfoods, is a diabetic-friendly and health snack startup that has won numerous awards. Their products are sold across India through leading e-commerce portals, e-vending machines and stores in North India. As a TED speaker, Sachin regularly writes and speaks on entrepreneurship, fitness and wellness topics in various forums, conferences, print and electronic media. Sachin sir's expertise is highly sought after, and he is an advisory board member of various education institutions. He has mentored and delivered speeches at various prestigious institutes, including IIT Kanpur, IIT BHU, IIM Lucknow, SRCC Delhi, and Amity University as well. We have 2 big lessons from Sachin sir's journey. The first one is be a lifelong learner. And the second is stay young and happening always. Can we have a huge round of applause for Mr. Sachin sir? Now, I would like to call upon my first speaker out here, Mr. Ved Krishna sir. From a burnout in 2012, without having a purpose, and almost shutting down, to now having a presence in 40+ countries, with 40+ partners, and 16,000 shareholders all across the globe. Ved Krishna sir has truly transformed the packaging industry. Ved sir leads Pakka's efforts towards scaling regenerative packaging globally to contribute towards a cleaner planet. Ved sir has steered a pulp and paper family business to becoming a leading provider of compostable packaging, which is now looking to expand and provide solutions globally with ambitious growth plans. The biggest brands across the globe are using Yash Pakka's packaging, and we all are witness of it. Some of the names would be McDonald's, KFC, Borosil, LIC, Air India, Haldiram's, and a lot more. Yash Pakka has also won the India Design Mark Award and the Red Dot Award, which is the highest design award in the world. His biggest achievement has been in building an absolutely brilliant core team to lead global expansion. He loves adventure sports. He loves scuba diving, climbing, hiking whitewater, motorcycling, and a lot more. And the most special part is he loves spending his most precious time with his family. His advice to entrepreneurs is to look towards and contribute towards a higher purpose and never think small. And the motto of Yash Pakka has always been, we all dream of a cleaner planet. Together, we can make it a reality. Let's have a huge round of applause for Mr. Ved sir. Our next panelist is Mr. Shashank Agarwal. He is a 3rd generation entrepreneur and Deputy Managing Director of Kanpur Plastic Pack Limited.
With a degree in international marketing from Harvard Business School, he leads Kanpur Plastipack to new heights of success and aims to make it a global leader in FIBC production. A TED speaker, a wildlife enthusiast, Mr. Shashank Agarwal is also the president of IFI BCA, a billion-dollar association that promotes, trade and protects member interests. Kanpur Plastipack is the first FIBC company in the world to be awarded with A+ grade certification in BRCGS. Let's have a huge round of applause for Mr. Shashank Agarwal as well. Thank you, sir, for being here. Our next and third panelist is the Director and Chief Financial Officer of PTC Industries. PTC Industries Limited has been listed as one of the 16 hidden gems in Forbes India magazine. PTC has also been awarded the Special Award for MSMEs by Time India magazine and won the CII Industrial Innovation Awards 2018 for the most innovative manufacturing company in the medium segment. Recently, PTC has also been awarded the Raksha Mantri Award for Excellence in Defense and Aerospace at DEF Expo 2022. Let's welcome Mrs. Smita Agarwal, ma'am. She was also the winner of 2017 Women Achievers Award by LMA in the corporate category. She was also recognized by NITI Aayog as one of the top 60 women entrepreneurs in the country at the Women Transforming India Awards 2018. She is also the chairman for the Indian Women Network and the CII Women Empowerment Committee for 2022 and 23. Apart from her passion towards work, Smita ma'am is very passionate about traveling, reading and also her family, and she loves her 2 sons. This was the specific thing that she mentioned in the end. A very warm welcome to Smita ma'am as well. And the last and fourth panelist of this session is Mr. Amit Tiwari. He is the CEO and MD of MKT Softwares Private Limited, which went from a website development and ERP implementation company, setting up IT infrastructure, to a digital transformation service provider and a leading player in enterprise automation, education solution, digital marketing, and HR automation. An alumni of IIT Kanpur, Mr. Amit Tiwari has been awarded the Agile 100 Award in 2015 and Premier 100 Award in 2016 by IDG Incorporation. His motto in life has always been, dream big and believe in your dreams passionately. Show resilience, learn from your mistakes, and get back up when you get knocked down. A very warm welcome to you as well, Mr. Amit Tiwari, sir. Let us pass on the mic to Mr. Sachin Sahni, sir, now, and he will take over. And let's have a very beautiful and inspiring session now. Thank you. So I'm pretty excited. Are you? Yes. I am sure इसके बाद learnings तो होंगी, कुछ takeaways भी होंगे, पर एक चीज जरूर मुझे लगता है होगी, वो होगी हम बहुत सारा हौसला लेके जाएंगे यहाँ से, कि हम अपनी companies को बड़ा कर सकें, build कर सकें from local to regional to national and global like them. Looking forward, very excited. So I'll begin. जो कहते हैं ना कि ladies first. So we'll begin with the lady of the day on the stage. So Smita, लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए होंगे PTC को, I am sure. Today you are building parts and components and systems for satellites to missiles to defense systems to even parts for Rolls-Royce and for for all the aviation companies from McDonald's to all the other big. ये पहले दिन से था या how did it happen? शुरू कैसे हुआ? Tell us briefly about this journey. Yeah. Thank you, Sachin, and I must say it's a real privilege to be here sitting on this stage, especially लखनऊ में एक opportunity मिलना जहाँ पर कि इतने
बढ़िया ऑडियंस के साथ बातचीत करने का मौका मिले. आई थिंक थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू टू टाई फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. Actually, PTC Industries is a company that's now going to be 60 years old. So it was started. My bad. I thought it's the. So this is almost like third generation. This is the second generation. So basically, it was started in 1963, and the idea of starting this company and the purpose has always remained the same, and that is something that we are very blessed with. कि जो founders के time से भी जो vision रहा company का और जो सोच थी कि किस area में किस field में हमें आगे बढ़ना है और क्या achievements के क्या objectives लेके साथ में चले थे. So from day one we have been a company that has been committed to technology, to innovation, and one of the very main aspirations that we had was कि in those times in 1960s कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस टाइप के critical components और जो चीज़ें आपने list करी, parts for even for example metal components for very highly critical applications, whether it is in oil and gas, whether it's in marine, whether it's like you said in satellites, and today in aerospace and defense. इंडिया से सप्लाई होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, एंड दैट वाज द फर्स्ट मोटिवेशन ऑफ बिगिनिंग दिस कंपनी, ऑफ ऑल द हार्ड वर्क, एफर्ट्स एंड द एंटायर जर्नी दैट हैज बीन देयर फॉर सो फार. बट ऑफ कोर्स, लाइक यू मेंशन्ड, we have been on a very pivotal path in the last 20 years, and that came, if I can say so, with a huge global shift when China emerged as one of the most important manufacturing hubs in the world, and it sort of started being called as a factory of the world. And at that point of time, what was very important for us, and perhaps even whatever the journey was going to be afterwards, and even a question of, let's say, survival, was that we must have an offering where we don't get pushed into this China versus us kind of a war. We are not in a price war. We are not in a place where anything that we do can be actually easily achieved, replicated, or provided by any other company. And to mention the stuff that we discussed, to do this as a company sitting in UP, not necessarily known for its technological excellence or its industrial progress at that point of time, was also perhaps a brave thing to do. But I think, of course, God has been kind. We've been blessed both by the efforts. One quick interjection here. When did this pivot happen from the other things to getting into very critical defense equipments and missiles, and is it recent? When did it happen and how did it happen? So getting into defense and aerospace is obviously, it's not an easy proposition. The thing that I want to emphasize is aajkal, of course, defense is considered a sunrise sector. Across the country and across the world, you'll see a lot of companies trying to get into defense. और आत्मनिर्भरता के बारे में बात आजकल बहुत हो रही है. लेकिन the thing to understand is कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आप कितना भी आत्मनिर्भरता के बारे में बात कर लीजिए और बोलिए कि we want to bring all sort of manufacturing to India. Those kind of technologies don't come to countries like us. And therefore, our pivotal shift happened when we started working on those technologies, either bringing them, developing them, commercializing them, making them, proving them to be some technologies which were maybe lab technologies, proving them to be successful at even large scales, maybe what they were not even intended for earlier. So this started, I would say, possibly in the decade of 2010. 2010, right? So it's been almost 13 years. So I'll come to the challenges और आपको क्या roadblocks मिले यूपी में होने के later on. But before that, Amit bhai, coming to you. ये IT इंडस्ट्री में थे और फिर ये गाथा कैसे शुरू हुई? कुछ गाथा के बारे में बताइए. How did it happen?
First of all, thank you, Sachin, and thanks all TIE Lucknow team, starting UP, for this wonderful event. I must congratulate all of you. Thanks. And actually, this event is the need of hour. Coming back to how Gatha has started, so first of all, जो लोग गाथा को नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं. 3 साल पुराना स्टार्टअप है, दो माई एंटरप्रेन्योर जर्नीज अप्रॉक्स 17 ईयर्स. और गाथा का स्टार्ट हुआ था 2019 में. व्हाट्स द आइडिया? आइडिया था कि हमारा, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की, आत्मनिर्भरता के बारे में, इंडियन भारतीयता के बारे में हम लोग अगर बात करें, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर इंडिया, in terms of literature, in terms of culture, in terms of our heritage and tourism. हम हमेशा बाहर की बात करते हैं. बाहर का है, कोई भी चीज़ ऑडियो बुक के रूप में आएगा, OTT के फॉर्म में आएगा, क्या हो रहा है nobody knows, but they pride about their own literature, about their own culture. In US and Europe, the government had a very separate funds to preserve all these things. बट 2019 की अगर हम बात करें तो यूट्यूब वगैरह को छोड़ते, बट देयर आर नॉट एनी ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप भारतीय साहित्य, कल्चर, टूरिज्म और ऐसे चीज़ों के बारे में जान सकें जो कि हिडन है. गाथा का यही प्रयास है. गाथा's effort is basically to preserve Indian literature, Indian culture, the unsaid story of successful entrepreneurs, successful places, successful brands, in terms of audio. Because एक कहावत है ना कि हम लोग जब शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुनते हैं, और जो श्रव्य होता है, श्रव्य का इम्पैक्ट आपके अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है. हम लोग आप पढ़ने में ठीक है, आज 3 बार चीज़ों को पढ़ोगे तब वो चीज़ आपके सामने आएगी, बट एक बार आप सुन लोगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जल्दी बैठ जाएगी. एंड दैट इज द साइंस बिहाइंड दैट. सो विद दिस ऑब्जेक्टिव गाथा का स्टार्ट हुआ, और टुडे आई कैन से कि वी हैव मोर देन 500,000 यूजर बेस अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि गाथा को. तो अमित भाई, people say that startups should happen in 20s. मतलब मैं no offense, हाँ, एज वेज की बात नहीं करने जा रहा है, बट ओनली थिंग इज मतलब जज्बा रहता है. मतलब the lesson is that जज्बा एडवांटेज क्या रहा आपका लेट 30s में स्टार्ट? मतलब इतना ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं. कुछ एडवांटेज था या यू थिंक के एनर्जी लेवल? I am just 40 plus 6 years old. Oh my God. So my miscalculation. So you look younger than I had thought. All right. I did not go to your social media to check your date. Yeah, that's my fault. Although I can see that Aditya did a huge research work. सबके निकाल के लाया है वो आपके सोशल मीडिया से एक पॉइंट आपने जो लिखा होगा इधर उधर कहीं वो निकाल के he's got that. So but then coming back to your this thing, was it an advantage? Was it a और ये हिम्मत कैसे बनी पहले? See, स्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती. There is no age to start anything. In fact, if you go through the success story and case study of the KFC, if I am not wrong, the founder started in the late 50s. It is. So it's never too late to start? It's never too late. Whenever you have an idea in your mind and whenever you have good understanding and research about your product, it should be market ready. Market ready का ये मतलब नहीं कि बहुत सारे players आ जाएं आप तब आइए. आप अर्ली मूवर का एडवांटेज भी ले सकते हैं, बट योर रिसर्च शुड बी गुड. यू शुड क्लियरली डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस. आप किसको एड्रेस करने जा रहे हैं और जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं वो आपके विजन के साथ में मैच कर रहे हैं. क्या नेगेटिव साइड क्या था और पॉजिटिव साइड क्या था स्टार्टिंग एट लेट्स से 40? सर नेगेटिव साइड जनरली होता जरूर है, बट मेरे साथ में कुछ नहीं था. पॉजिटिव क्या था? पॉजिटिव ये था कि मेरे पास आईटी कंपनी का मेरा 17 ईयर का एक्सपीरियंस था. मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस थे जो मुझे पता था कि ये चीज़ करेंगे तो गलत हो सकता है, विच इज़ द बिगर एडवांटेज. ऑलरेडी 17 ईयर्स का एक नेटवर्क था, अंडरस्टैंडिंग थी, बिजनेस के बेसिक्स पता थे, जो कि शायद जब मैंने MKT स्टार्ट किया था जो उसमें नहीं थे. उस समय मैं ज़्यादा गलतियाँ की इन 2006 राधा दिन गाथा के टाइम पे वो गलतियाँ
क्योंकि ऑलरेडी हम लर्न कर चुके थे। ग्रेट। तो मतलब लर्निंग्स बहुत सारी हो जाती हैं और गलती करने का चांस कम रहता है। अभी जैसे कसेल साहब ने बोला कि आप जब 3 बार मिस्टेक करते हैं तो आपके फंडिंग के चांसेस 100% सिक्योर हो जाते हैं। ग्रेट। सो आई सेकंड यू, बिकॉज मैंने भी जब कीरो स्टार्ट किया था तो मुझे 20 साल का हुए, कोई 20 साल हो गए थे, तो you are the another success story actually. So and I will add to what you said कि जब मैंने कीरो स्टार्ट किया आफ्टर वर्किंग बिल्डिंग अ चेन ऑफ वेलनेस सेंटर्स एंड सैलून्स, एडवांटेज ये था कि बहुत सारी हमें ये पता था कौन सी गलतियां नहीं करनी है। एंड एडवांटेज एक चीज और होती है व्हेन यू स्टार्ट अराउंड 40 और सो, एक तो एक्सपीरियंस इज बिहाइंड यू एंड यू स्टिल हैव लॉट ऑफ एनर्जी and experience, it makes a potent combination. So if you've not started, let's say if you're 35, 40, 45, it's time again to start. Want to add one thing? This is the age when you will be filled with experience and energy both. So we want a lot of you, if you are in job school, you must quit your jobs and start. All right. So coming to you, with yet paper industry, Ayodhya, and now you are a globe-trotting citizen. कभी ग्वाटेमाला में मिलते हो भाई, कभी I see your social media post from some God-forsaken jungle inside, South America. कर क्या रहे हो भाई? मुहिम एक ही है कि दुनिया को और धरती को साफ कैसे छोड़ना है। बट सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप लोगों के सामने आने का मौका मिला। कई निखरते हुए उद्यमी हैं यहाँ जो कि हमेशा ऊर्जा का स्रोत होते हैं हम लोग जैसों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों की जो यात्रा है उससे कुछ हम लोग बांट पाएंगे आपस में। तो बेसिकली एक ही मुहिम है और जो समझ में आया वो यही था कि भाई कुछ करना है औरों के, तो उससे बदलाव आया, उससे परिवर्तन आया। तो पिताजी ने एक छोटी सी इंडस्ट्री चालू की थी और इत्तेफाकन, मैं अब इत्तेफाकन नहीं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी ने बताया इत्तेफाकन कुछ नहीं होता है। आप उनसे मिले इनफैक्ट, तो फिर जी। एंड गुरुजी, जस्ट एडिंग हियर, गुरुजी वाज, I met him some 5 days back, ऐसे ही 10 दिन week back, and गुरुजी, when I came across, I was surprised. टाई को कोई 32 साल पहले शुरू करने वाले में से टॉप 3-4 लोगों में से वो थे। एंड देन he actually gave me a download on how TIE was started and how TIE grew to where it is today, 60 plus chapters. Thanks for introducing him to me. So सचिन और मैं भी, आप और मैं भी एक टाई के ही प्रोग्राम में मिले थे अयोध्या में, जहाँ मेरा जन्म हुआ और परवरिश हुई। परंतु मेरे पिताजी ने एक छोटी सी इंडस्ट्री चालू की थी और उसमें इत्तेफाकन कोट अनकोट में आया और कई गलतियां की और इस परिस्थिति में आ गए कि आज बंद होगी कंपनी की, कल बंद होगी। तो ये जब स्थिति होती है तो आत्ममंथन बहुत होता है और आत्ममंथन के समय मेरी पत्नी मेरे से पूछती थी, तुम हमेशा ये बोलते हो कि किसी कारण से तुम आ गए इसमें और तुम्हारा इसमें काम करने की इच्छा नहीं है, तो तुम अगर तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं होता तो तुम क्या करते? तो हमेशा जब ये सवाल आता था तो यही आता था, जैसे सचिन ने शुरू में बोला, कहीं पहाड़ पे कुछ कर रहे होते, प्रकृति के साथ कुछ कार्य कर रहे होते। तो जब ये सामने आया ये सोच, उसी समय जो सचिन ने जिस गुरुजी से वो मिले वो भी उसी समय मेरे से जुड़े। उन्होंने 4 बातें सिखाई। सबसे पहली थी इत्तेफाकन कुछ नहीं होता है। दूसरी थी कि यूनिवर्स की एक सिंक्रोनिसिटी है जिसकी वजह से आप किसी जगह पे आज आप और हम मिल रहे हैं, उसमें एक सिंक्रोनिसिटी है। तो दूसरा है कि जो भी आपने किया है वो एक धन इकट्ठा किया है, उसके ऊपर बनाना चाहिए, ना कि इसको भूल के आप हिमालय की गोद में जाएं, 2 साल ध्यान लगाएं, उसके बाद सोचें कि नहीं ये नहीं, कुछ और करना है मुझे जीवन में। इससे अच्छा ये है कि जो मिला है, आपने जो धरोहर ले ली है, उसको आप और कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा उन्होंने बोला, अपना जो जीवन है वो अपने लिए नहीं होता है। तो आप भी जब सोचेंगे, जब आपको खास करके खुशियाँ मिलती हैं तो वो दूसरों के साथ मिलती हैं, तो आप औरों के लिए क्या कर सकते हैं, योगदान क्या कर सकते हैं। और चौथा था कि ये जो कान के बीच की मस्तिष्क वाली जगह है, उसको अपने आप को रोकने में सीमित ना करने दो और कई गुना सोचो। तो ये जो 4 बातें हैं, इनसे काफ़ी परिवर्तन आया। और आज उसमें फिर हम लोग ने ये रियलाइज़ किया कि हम लोग पैकेजिंग के क्षेत्र में थे, परंतु हमारा कोई भी उसमें योगदान नहीं था, क्योंकि हमारा कागज जाता था, आप लोग सब इस्तेमाल करते थे साबुन की टिकिया के ऊपर जो कागज मिलेगा आपको, एक तरफ हॉटमेट लगा है, एक तरफ प्लास्टिक बन लगा है,
वो उतना ही हानिकारक है जितना और भी कोई ऐसा पदार्थ हो, नॉन रिन्यूएबल पदार्थ हो। तो हम लोगों ने 3 दिशा में कार्य चालू किया। सबसे पहला था कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कैसे कर देंगे। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होता है जो अपने पोटैटो चिप्स खाते हैं या बिस्कुट खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं, कोई भी चीज़ जो मल्टी लेयर्ड है और वो जो है वो लाख साल तक कहीं नहीं जाता, वो धरती में ही रहेगा, ना रिसाइकिल हो सकता है। जो अपने कबाड़ी हैं, जो रैक पिकर्स हैं, वो भी नहीं उठाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू कुछ नहीं है। दूसरा था कैरी प्रोडक्ट, जिसमें हम ट्रेडिशनली थे कागज के द्वारा, लेकिन हम लोग को ये भी पता था कि कागज की अपनी सीमाएं हैं, वो कटेगा फटेगा, एक वजन की दिक्कत रहेगी, बारिश में ले जाने में दिक्कत रहेगी, तो इसमें क्या कर सकते हैं। और तीसरा था फूड सर्विस में, जिसमें कि ज़्यादातर अपने थर्मोकॉल बोलते हैं, स्टायरोफोम, पॉलीस्टायरीन, जो कि बहुत ही हानिकारक है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। और हम लोग गर्म खाना भी डाल के खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं उसमें, जो कि लीचेट की तरह अपने अंदर जाता है। तो उस पर ये 3 एरियाज में कार्य करना चालू किया और वो भी रिसाइक्लेबल नहीं रहता है। तो इन 3 एरियाज में हम लोगों ने कार्य चालू किया। आपको जान के खुशी होगी कि जो स्टायरोफोम वाला है वो पहले हम लोग कार्यान्वित कर पाए और कमर्शलाइज कर पाए। तो चक के नाम से आप कभी भी लखनऊ एयरपोर्ट जाएंगे या किसी भी हल्दीराम में जाएंगे, भूरे रंग की आजकल आपको प्लेट, बोल्स ये सब मिलेंगे। अब धीरे धीरे डिलीवरी कंटेनर्स भी आ रहे हैं, तो उस पर कार्य चालू किया। अब हम लोगों का इस साल यूनिलीवर के साथ हम लोग बहुत 2 साल से काम कर रहे हैं, तो उनकी जो शैम्पू के जो सैशेज हैं, जो 2 रुपये के फाड़ के यूज़ करके फेंक देते हैं हम लोग और फिर वो नदियों में चले जाते हैं, उनको हम लोग अब कॉम्पोस्टेबल कर रहे हैं। और कैरी प्रोडक्ट्स में भी एक और पेटेंट हम लोगों का है, जो कि मिनरल एंड बायोप्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी इस साल कॉमर्शलाइज हो रहे हैं। तो ये मोटा मोटी ये जर्नी है। अयोध्या में कोई, अगर अयोध्या में बाराबंकी में कोई, लेट्स से आजमगढ़ में फैक्ट्री सेटअप करके ग्लोबल सोच सकता है, ये हुआ कैसे? मतलब क्या इसके बारे में बताओ क्या? इसकी भी पूरी जर्नी है। एक तो मेरे जो एक चीज और, जस्ट वन, ये यश पेपर से पैका, इसकी जरा मिस्ट्री बताओ, व्हाट इज पैका? जरूर। तो पहली बात पहले तो सबसे पहले तो भाई जो आत्मा थी उसने डिसाइड किया कि 2 अद्भुत जनों के द्वारा जन्म होगा इस बार। तो वो जो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े हिप्पी किस्म के लोग हैं, तो पापा भी कहीं भी बैठ के कोई भी नागा साधुओं के साथ चिलम फूकने लग जाते थे, और माँ भी जो है वो बंजी जंप कर रही थी 50-55 साल की उम्र तक, और दोनों यात्री थे बेसिकली। तो उनको हमेशा शौक था, हम लोगों का भी हमेशा एक्सपोजर हुआ। पैसे कम थे तो बलरामपुर चले जाते थे, थोड़े पैसे आ जाते तो सिंगापुर चले जाते थे, बस इतना अंतर था, लेकिन यात्रा जीवन में चलती रही। 16 साल की उम्र में भी मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो पिताजी को किसी ने बोला कि भाई अगर ये इतना अपने आप को मतलब एडवेंचर वाला समझता है तो आर्कटिक सर्कल में स्कॉटलैंड के ऊपर एक सर्वाइवल कैंप हुआ करता था, तो वहाँ भेज दिए गए उस समय। तो वो भी सर्वाइव किया किसी तरीके से, जिसमें आपको आइलैंड पे अकेला छोड़ देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी अपनी कहानी है। तो यात्रा हमेशा से जहन में आ गई थी। पढ़ाई भी थोड़ी बाहर हुई, देहरादून में पहाड़ों में स्कूलिंग हुई, एजुकेशन, बाकी लंदन जाने का मौका मिला, फिर वापस आ गए। फिर बीवी अंग्रेज है तो उससे थोड़ा बहुत सीखने मिल गया, तो तमाम कारण थे। और हमेशा ये तो था ही कि भाई कैसे उद्योग को आगे बढ़ाना है, तो निर्यात का कार्य पहले ही चालू हो गया था, तो उसकी वजह से भी टेक्नोलॉजीज, मेरे पिताजी भी बड़े इच्छुक थे हमेशा बाहर से टेक्नोलॉजीज लाने के लिए, तो वो भी लगातार यात्रा करते रहते थे, गाड़ी लेके छोटे छोटे गांवों में यूरोप के घूमेंगे, किसी को उठा लेंगे, किसी से बोलेंगे ये कैसे बनाते हो भाई, तो वो जैसे स्मिता बता रही थी कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज, तो वो करते रहे, तो खून में ही था ये, मैं बोलूँगा। उसके बाद ऑब्वियसली भाई धीरे धीरे बाहर और स्टैब्लिश करने का मौका मिल गया। पहले R&D टाइप स्टैब्लिश किए, अब उद्योग स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये तो थी मोटा मोटी पहले सवाल का संक्षिप्त जवाब। परंतु दूसरा जो है वो उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। हम लोग यश पेपर्स लिमिटेड के नाम से बहुत सालों तक जाने जाते थे, अब यश पैका हो गया है, और अब यश ड्रॉप हो जाएगा इस साल, तो पैका रह जाएगा। तो पैका की जो कहानी है वो है कि हम लोग ये खोज में थे कि हम लोगों का खाली कागज का कार्य नहीं रहा है, पूरा जो समर्पण है वो पैकिंग की तरफ है, पैकेजिंग की तरफ है। और तो ये पिवट था एक तरीके से। फर्स्ट जनरेशन थॉट समथिंग, सेकंड जनरेशन केम एंड गिव इट अ न्यू dimension altogether. वो काश मैं सारा स्वयं वो श्रेय ले पाता, लेकिन श्रेय मेरा नहीं है, बहुत लोग हैं हमारे साथ जो इस यात्रा में रहे, तो हाँ बहुत सारे साथी हैं, और परिवार से मैं ही रह गया, भाई अफ्रीका रहता है, माँ अपना कार्य करती हैं,
तो लेकिन परिवार बढ़ता गया, बहुत लोग जुड़ गए, और ये मैं भी कहूँगा कायनात की देन है। रोज दुनिया भर से लोग अयोध्या में आके रहते हैं, जो हम लोगों के लिए अभी भी सरप्राइजिंग रहता है कि भाई कैसे ये जुड़ाव होता जा रहा है। तो फिर ये हुआ कि भाई पेपर से हम लोग हट गए हैं, लेकिन पैकेजिंग नहीं समझ में आता था, क्योंकि भाई पैकेजिंग में भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि हम लोग धरती की तरफ योगदान कर रहे हैं और पैकेजिंग उसका जरिया है। तो का जो शब्द है वो इजिप्शियन में उसको आत्मा के लिए, सोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। का एक पिक्चर भी आई थी डिज्नी की, का करके, वो उसका मतलब है सोल, और PAK पैकेजिंग का शॉर्ट फॉर्म हो गया। लेकिन इसके पीछे भी रहस्य ये है कि हम लोगों ने PACKA नहीं यूज़ किया, हम लोगों ने PAKK यूज़ किया, क्योंकि मेरे पिताजी और हमारे फाउंडर का नाम KK था। तो हम लोगों ने बीच में जो आंतरिक जो कहानी है, रहस्य है, जो हम लोग कंपनी के अंदर जानते हैं, वो है KK इस वजह से है, ताकि हम लोगों के फाउंडर का नाम बना रहे उसमें, और पैकेजिंग विद द सोल जो है वो टैगलाइन है। तो आपकी जो ग्वाटेमाला वाली फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो आप, उसके बारे में वापस आते हैं आपके पास, बट उससे पहले मैं शशांक आपसे जानना चाहूँगा, you are a second generation entrepreneur. Third. When I missed it there. I should have done more research. Sorry, my bad. So, again, being son of the Mr. Manoj Agarwal, IITian, the entrepreneur, जब बिजनेस ज्वाइन करने वाले थे, क्या प्रेशर था क्या कि यार ऑब्वियसली होता है ना कि पापा यहाँ तक लाए हैं, मैं नेक्स्ट लेवल जाऊँ. What was there in your mind when you were about to join the business? So first of all, thank you for having us, and I'm actually privileged to share a stage with such innovative entrepreneurs. So I think इतना तो सोचते नहीं है जब join कर रहे होते हैं, तो mind इतना naive होता है कि you just want to go with the flow. You are actually thinking कि how you can add value. You don't think about pressures or about goals or about targets. That comes later on in life. But initially the thought was to add value in the business, and obviously there was no pressure. That's heartening to know, because when I come across a lot of second generation entrepreneurs, उनका ये होता है पापा की ना आदत है बैंड तो बजाने की, तो you lucky. बैंड तो बजेगा ही ना, तो उसमें फिर करना क्या है, स्ट्रेस ही नहीं रहेगा ना. तो बजा था क्या पहले ज्वाइन किया तो? Sorry? बजा था क्या? नहीं कभी नहीं बजा. बजा नहीं. You are one of those जो होता नहीं है topper of the class. Not at all, not at all. So see, there is no stress in joining business. I would never join something where I would have stress. I have always found it to be very. Stress doesn't. क्या होता है कि अब मुझे ये करना है यार और कैसे होगा टाइप्स, you know that thought. एक होता है कि चलना पापा जी की गद्दी पे बैठना है, तो एक वो है. दूसरा होता है कि I have to perform when you have somebody who's an icon already. Like I know Manoj sir, so I know how difficult it is to get in his shoes. So if pressure was not there, I'm sure. Yeah, I mean, even when I was studying, so during my summer breaks, I would go to the factory and I would find myself very comfortable with machines, technology, people. So it always gave me a lot of pleasure in being there. So just the fact that I could be there was giving me pleasure. Everything else actually did not matter. So everything on came later, but just the fun and enjoyment of being there was what was driving me at that moment. All right. So what was the thought कि ये चीज मैं different करूँगा the moment I joined my family business? So probably it. I mean, when I look back now, it got evolved over time. It did not happen at one trigger point, but it was about being. I mean, so we are in Kanpur, and our raw material was imported. We were exporting, so it was not the best economically best cost-efficient place to be. But there was something about Kanpur that always brought me back to Kanpur and kept me in Kanpur. So I did not want to move out. So that was one of the decisions at that point of time, whether to move out or to remain in Kanpur. Having said that, the thought was to become global, to be present in as many countries as possible. So we were about 6 or 7 countries. Now we are about at 60-65 countries. So the idea was to. That's huge. Yeah. यूपी वाले छक्के चौके अट्ठे भी मार रहे हैं. So यार यूपी ऑन द राइज पहले ही हो जाना चाहिए था. Why did we take so long to actually come up with this title, right? I said, once I
सारी चीज़ें एज आई सेड कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको सामने लाने की जरूरत है, जो आप लोग कर रहे हैं। Wow, some credit. So coming back to you, Smita, यूपी में काम करके क्या ऐसा लगा कि यार यूपी में काम करते हैं? Did you feel that pride always, or were there some tough times when you कभी लगा टीम में गया यार can we move out of UP? We should move out of, ऐसा कुछ था क्या कभी? So, पहली बात तो again, the whole family, the whole organization is very, very proud to be in Uttar Pradesh, and very, very proud that Uttar Pradesh is now on the map of the world. Just to give a context, the capability that ETC now has is a capability of a company that, if you remember, called Precision Cast Parts, which Warren Buffett acquired about 5-7 years earlier at, I think, a cost of about $30 billion. That sort of capability to come in the country and to be present in UP is something that we are exceptionally proud of. To have the right kind of infrastructure and ecosystem is, of course, an evolutionary process. यूपी के जो एडवांटेजेस हैं वो अगर आप समझ के काम करिए, उन चीज़ों को प्रॉपरली लेवरेज करिए, तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं यूपी में वो कहीं और हो ही नहीं सकती. बट जो चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए, जैसे आई मीन टू गिव एन एग्जांपल, वी आर लुकिंग एट अ टेक्नोलॉजी capability that may be we are 1 in 5 companies in the world, not in India. In India, we are the only one who has certain capabilities to manufacture these kind of parts and components. So there is no skill and talent to work on these kind of technologies. खुल के बताओ challenges क्या थे? So, we have no नेता here, so don't worry. तो skilled manpower मिलने का चैलेंज इज प्रॉबली वन ऑफ द बिगेस्ट. देखिए, एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट का, इंडस्ट्री का बहुत चेंज हुआ है और बहुत इम्प्रूव हुआ है ओवर द पीरियड्स, एंड दैट इज जेन्युइनली वी कैन सी दैट चेंज, वी कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन. तो यूपी में और चीज़ों का बहुत एडवांटेज है जो आप आज की डेट में. So let's list the advantage. First of all, you have a very strong loyalty system in UP, that whenever people get associated with your employees are very loyal. Your employees are loyal, your partners are loyal, your vendors are loyal. The sort of relationships that you establish is a huge support system. The government environment is very conducive, is a very forward-looking thought process. Industry. Now that calls for a huge round of applause. Absolutely, genuinely. आप सोचिए कि इंडिया में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लॉन्च करे गए, एक तमिलनाडु में विच इज अ नो ब्रेनर, दैट होल इकोसिस्टम एग्जिस्ट्स ओवर देयर. बट इतना बड़ा स्टेप लेना कि सेकंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी में लॉन्च करना, 6 नोड्स आइडेंटिफाई करना, उसके पीछे इतनी सारी मेहनत डालना, इंटेंशन तो सही दिखाया है. और उसके बाद काम मजा आ रहा है यूपी में काम करने का. 60 साल से यूपी में काम कर रहे हैं, अब आप मजे की बात करें. मतलब चैलेंजेस वाले नहीं है ना, जिसमें लोग कहते हैं कि चैलेंज सबसे बड़ा यूपी में आज के डेट में मैन पावर का है. आज की जो स्किल्ड मैन पावर, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से लॉट ऑफ थिंग्स हैव लेवल्ड अप. अब आप अयोध्या में बैठ के जब ऐसा काम कर सकते हैं, लखनऊ में बैठ के, कानपुर में बैठ के इस तरीके के काम कर सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है आप यूएस में हैं कि यूरोप में हैं कि सिंगापुर में हैं, सब ऑन द सेम. कानपुर में बैठ के हिंदी लिटरेचर नॉर्वे में पहुंचा रहे हैं. बिल्कुल. कानपुर में बैठ के हिंदी लिटरेचर तो फिर भी नॉर्वे पहुंच सकता है. कानपुर में बैठ के कनाडा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आईटी सपोर्ट देना, ये ज्यादा चैलेंजिंग है. अभी अगर हम लोग चैलेंजेस डिस्कस कर रहे होते यूपी के, तो हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर. सी वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज थिंग्स, सो वी आर डिस्कसिंग हायर इवॉल्व्ड थिंग्स. That itself is a very big positive, and it has never been a better time to be in UP than where we are right now. लैंड की अवेलेबिलिटी की इश्यूज नहीं है. गवर्नमेंट आपके पास ऑलवेज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू वांट टू गेट इनटू. सो मच ऑफ कमिटमेंट दैट यू सी रिसेंटली इन द GIS. सो
of course, power की आपने बात करी शशांक जी, all of these things have become tremendously improved. But yes, there are things, there are roadblocks and hurdles that need to. बात करें रोड ब्लॉक क्या है और उसको मेन चीज क्यों, मैं people should get disheartened, but if they know these are the challenges and how you guys overcame those challenges, it's very important. देखिए, हमारी जैसी कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो नेक्स्ट है वो इकोसिस्टम का है. अगर आप बैंगलोर जैसी जगह में सेटअप कर लीजिए या हैदराबाद में सेटअप कर लीजिए, ऑलरेडी यू हैव अ होल इकोसिस्टम वेयर लॉट ऑफ एंसिलरीज आर अवेलेबल. दैट इक्विपमेंट इज अवेलेबल. व्हेन यू आर सेटिंग अप इन लखनऊ फ्रॉम स्क्रैच, यू हैव टू पुट एवरीथिंग. सारी चीजें आपको ही लगानी पड़ेंगी क्योंकि पास में कोई ऐसा लॉजिकली वेंडर, सप्लायर, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं. तो क्या लग रहा है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत कुछ हो रहा है. आर वी होपफुल? हम लोग इंडिया में जब बिलोंग करते हैं तो हम ये बात तो मान के चलते हैं कि सब चीजें होती हैं जरूर. there's a doha by Kabir. I'm just going to say that. I don't know if you, with your permission. Go ahead. And this is something that we. कबीर की धरती, यूपी की धरती है ना. धीरे धीरे ओ मना, धीरे सब कुछ होए. धीरे धीरे ओ मना, धीरे सब कुछ होए. माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल. So that सोच के चलिए तो पॉसिबल है सब कुछ. चैलेंजेस की बात करते हैं और एडवांटेजेस की बात करते हैं. बीइंग इन यूपी हिंटरलैंड, अयोध्या, कानपुर तो फिर भी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट है. आप बताओ क्या चैलेंज है? हम लोग का तो सोच मतलब कि काफ़ी सीमित है एक तरीके से, क्योंकि हम जहाँ गन्ना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं. एक ही चीज़ सीखी है, गन्ने की खोई से सब कुछ बनाते हैं, गन्ने की लुगदी से. तो गन्ना चाहे आपने ग्वाटेमाला का नाम लिया, कोलंबिया, तमाम देश हैं, इजिप्ट है, तो जहाँ जहाँ गन्ना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं. तो इत्तेफाकन यूपी में गन्ना है, तो गन्ना है तो हम हैं, तो गन्ने से ही सब कुछ बनाते हैं. गन्ने का जो वेस्ट होता है, जो उसका वेस्ट बगास बोलते हैं, जो गन्ने की खोई होती है, उससे ही सब कुछ बनाते हैं. तो बाकी सारे जो चैलेंजेस हैं वो छोटे हो जाते हैं. मेन है गन्ना है. उसके बाद जो स्मिता ने कहा उसमें बहुत जरूरी चीज़ है, यूपी संबंधों का क्षेत्र है. और संबंध आपने जहाँ अच्छे बना दिए वो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आप कहीं और सोच ही नहीं सकते. हम लोग सोचते हैं यूपी अच्छा नहीं है, तो लेकिन संबंध की वजह से चीज़ें बदलती हैं. मैं आपको आज की बात नहीं बताता हूँ, 1981 की बात बताता हूँ, जब मेरे पिताजी चालू कर रहे थे कारोबार. पैसा जेब में एक नहीं था. जो पैसा था वो हरबन मौला आदमी थे, तो वो भी मशीन सप्लायर को दे आए थे, तो जीरो होके आए थे. मशीन सप्लायर ने बोला 20% एडवांस दे दो, तो बोले 5% है. वो जीवन भर की जो संपत्ति थी वो दे आए थे. तो फिर कैपिटल के लिए भी वैसा नहीं था, बस जुनून था कि करना है. तो जब वो आए तो फिर माँ को बताया, तो माँ ने बोला कि ठीक है, कुछ गहने हैं वो बेच देते हैं, उससे सीड कैपिटल मिल जाएगी, जैसे होता है परिवारों में. तो उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए. लेकिन उसके बाद भी पूंजी तो ज़्यादा चाहिए ना. उस समय की भी भाई 1-8 करोड़ का प्रोजेक्ट था 80 में, 81 में. तो उसके बाद उस समय पिकअप हुआ करता था, तो प्रदेशीय इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन. तो वहाँ पे भाई संबंधों की वजह से वहाँ से हम लोगों को पूंजी मिली. तो पिकअप की जो बिल्डिंग है, हम लोग जब अयोध्या से अंदर आते हैं तो वहीं पे कॉर्नर में थी. तो वो हमेशा टिल इज डाइंग डे इन 2005 वो हमेशा हाथ जरूर जोड़ते थे, बोलते थे कि इसकी वजह से हैं जो भी हैं, जो भी आप वो दे दो, आप वो करते रहो कि देर से होता है काम. लेकिन अगर संबंध बन गए आपके, तो संबंध बनाना आपके हाथ में. संबंध आपने बना लिए तो प्रेम भाव अगर आ गया तो बाकी सब अपनी जगह. संबंध के अलावा और क्या एडवांटेजेस हैं? You know, manufacturing from UP and then providing it to the world. You have companies in Singapore, in South America and North America. How is it happening? हम लोग खाली गन्ना ही देखते हैं, ये थोड़ी दिक्कत है. बाकी सब पे झेल जाते हैं हम लोग. एडवांटेजेस आई वुड गो द अदर वे फ्रॉम स्मिता. मे बी हम लोगों के क्षेत्र में आई थिंक गुड पीपल आर अवेलेबल. तो हम लोग क्योंकि काफ़ी निवेश करते हैं इन ट्रेनिंग, तो हम लोग अपना ओन इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, ताकि भाई हम लोग जिसको भी हम लोग हायर करें वो 2 साल पहले इंस्टीट्यूट में रहा हो. तो वो कई सालों से चल रहा है, तो 20 सालों से वो प्रकरण चल रहा है. तो हम लोगों को बहुत टैलेंटेड मैन पावर मिलता है. आसपास भूख है बच्चों में, वो चाहते हैं कि नौकरी अच्छी मिले. आज हमारे यहाँ जो भी नए प्लांट्स हैं उसमें 50% महिलाएं हैं.
तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने में अयोध्या में। हमारी लीडरशिप टीम में हम लोग 9 लोग हैं ग्लोबली हम लोग 9 लोग हैं, लीडरशिप कोर बोलते हैं, उसमें 5 महिलाएं 4 मर्द हैं। हमारे बोर्ड में हम लोग वो लाते जा रहे हैं, हालांकि वो सवाल से बिल्कुल हट रहा हूँ मैं, परंतु मेन जो जवाब था वो है कि हम लोगों के यहाँ टैलेंट की अवेलेबिलिटी है, उसको निखारना हमारे उसमें। तो हम लोगों ने एक और चीज़ चालू की, हम लोग थोड़ा जल्दी चालू कर देते हैं टैलेंट डेवलपमेंट। हमने गाँव में स्कूल खोलने चालू कर दिया, 3 साल पे चालू करते हैं। तो इकोलॉजी के बारे में समझाना, थोड़ी कंडीशनिंग करनी, थोड़ा उसको उस समय से हम लोग सेंसिटिव कर देते हैं बच्चे को 3 साल की उम्र से, और कोशिश ये करते हैं कि 3 साल से 21 साल तक उसको तैयार करें, ताकि 21 साल में हमको कोई दुविधा ना हो। तो इस तरीके से कर रहे हैं। तो शशांक, कमिंग टू यू, क्या एक माइक की कमी है? सो योर चैलेंजेस and advantages of being in UP? See, in today's time, skilled people is definitely the #1 challenge. But it is also a representation that there will be some challenges. There will always be a challenge, and having this kind of challenge is probably a very good thing. The advantage of UP is it has extremely stable weather. So we don't have situations of earthquakes or tsunamis or floods or things like that. So, and it is such an old culture that we don't realize that, but हर चीज़ में सीपन हो चुका है वो कल्चर, जिस वजह से एक फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी है, सो इनर्शिया है, सो दैट इज अ डिसएडवांटेज, बट इट इज ऑल्सो वेरी बिग एडवांटेज व्हेन यू सी योर लॉन्ग टर्म ट्रेंड। आई सी। सो IT वालों की शायद कुछ और ही वो होगी चैलेंज के मामले में, खासकर स्पेशली स्टेबिलिटी। जो एक चीज़ निकल के आ रही है आपसे बात करने के बाद, कि द बिगेस्ट एडवांटेज इज the human resource is very stable, very loyal, and when you train them and invest in them, they give you back multifold. जो शायद एक बैंगलोर में IT कंपनी सेटअप करने वाला या गुड़गांव में IT कंपनी सेट या कोई और कंपनी, उसको तो यही डर लगा रहता है कि यार रोज तो वो HR एजेंसीज और वो रिक्रूटमेंट ड्राइव ही चलती रहती है, और वो आपके साथ जब स्टेबिलिटी होती है टीम में तो बहुत सारे एडवांटेजेस अक्रू करते हैं। आई थिंक बट IT में भी ऐसा है क्या? आई मीन IT एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ही स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, और बहुत ही स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और स्टेबिलिटी भी चाहिए। चैलेंजेस की आपने हम लोग बात कर रहे हैं अभी। मैंने स्टार्टेड MKT सॉफ्टवेयर इन 2006, जब 2006 में सोचा था, सभी लोगों ने अपोज किया, डिसीजन किया कि बाहर से रहकर आए हो, और 2006 में रिसेशन आने वाला था उस टाइम पे, IT कंपनी शुरू कर रहे हो, वो भी कानपुर से शुरू कर रहे हो। मतलब एक मेरा IIT का बैचमेट है, सो आई जनरली कोट दिस थिंग, उसका ये कहना था कि यार तुम 3 तरीके से सुसाइड कर रहे हो। सुसाइड 3 तरीके से सुसाइड कर रहे हो कि बचने का कोई चांस नहीं। साइनाइड कैप्सूल मुंह में रख के गले में फंदा डाल के गंगा जी में कूद रहे हो, मतलब कोई चांस नहीं बचने का। क्यों? क्योंकि एक तो तुम जॉब छोड़ के, ही इज वेरी वेरी सीनियर पोजीशन एट सिटी बैंक, एक तो तुम जॉब छोड़ के अच्छी खासी पैकेज को छोड़ के कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, पहला सुसाइड का ऑप्शन। दूसरा IT कंपनी जब ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, और तीसरा कानपुर से। सी आज के टाइम पे पीपल आर मूविंग एवरीवेयर, स्टार्टिंग UP जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना सपोर्ट कर रही है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो कि बैग लेके चल रहे हैं। उनको आइडिया से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पे ट्रस्ट होना चाहिए, उसके जुनून होना चाहिए उसके अंदर। एट दैट टाइम ये सब कुछ नहीं था। लेकिन क्यों कानपुर से स्टार्ट किया, और फिर चैलेंजेस की हम बात करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी। सबसे पहले तो कोई चैलेंज नहीं था कि यार ठीक है रात में हम कहाँ पे सोएंगे, घर है अपना, आई बिलोंग टू कानपुर, और प्राउडली कहते हैं पक्के कानपुरिया हैं हम लोग। लेकिन इमोशन से बिजनेस नहीं होता, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। एंड कानपुर वाज अ टाइम, शशांक बहुत शुरुआत से जुड़े हुए, इट वाज अ टाइम जब ERP हम लोगों ने लॉन्च किया था, शायद ही 1-2 कंपनीज थी जिन्होंने एक्चुअल टेक्नोलॉजी IT पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। एंड JK सीमेंट वाज द फर्स्ट क्लाइंट ऑफ अस। हम लोग ने वहाँ पे रिसर्च की, एंड रैमको से हम लोग ने पार्टनरशिप की, फिर हमने यश पेपर में भी रैमको इम्प्लीमेंट किया था। दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक। बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि कैसे रिसोर्स आएंगे, तो जो आप लोग कर रहे हैं वो हम लोग ने करना शुरू किया। हमने फ्रेशर्स हायर किए और उनको ट्रेन किया अपने यहाँ पे, और
विश्वास मानिए कि एक टाइम पीरियड के बाद में सबको अपना घर अच्छा लगता है। हम गाथा की बात करते हैं, आपने कबीर की बात कही, तो बहुत पहले एक राज कपूर की फिल्म में एक लाइन है गाने की, जिस देश में गंगा बहती है, कि लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। एक टाइम के बाद में हर एक रिसोर्स वो चाहता है यार अपने घर के आसपास रहें, फैमिली के साथ रहें, फ्रेंड्स के साथ में रहें, एक शाम को अच्छी इवनिंग हो वो कर सके। वो कल्चर हम लोगों ने शुरुआत की कोशिश की कानपुर में देने की, एक वो पैकेज देने की कोशिश की, कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग और वैल्यू, रुपए की जो वैल्यू है उस टाइम पे, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड की ध्यान में रखते हुए। इट वॉज नॉट एज पर बैंगलोर, लेकिन कानपुर लखनऊ से काफ़ी ज़्यादा जो उस समय लोग पे कर रहे थे कि उनको बाहर जाने का जो ड्रीम है, अगर वो कॉस्ट कैलकुलेट करें, वो यहाँ पे मिल सके। ये दूसरा चैलेंज था जो हम लोग ने कवर अप किया। कोविड के बाद में थोड़ा चैलेंज बढ़ गया क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया। अब इसके लिए हम लोग दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं। तो एक पंच लाइन जिसमें बिलीव करता हूँ, चले बहती, और जो मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि आप जब चलते रहेंगे तो रास्ते अपने आप मिलते रहेंगे। फिर चाहे चैलेंजेस हो तो अपॉर्चुनिटीज़ भी, इफ़ देयर आर चैलेंजेस देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, आई बिलीव इन दैट। तो स्मिता, विजन क्या है, कहाँ जाना चाहते हो? $10 बिलियन यूनिकॉर्न बनना है, डेकाकॉर्न बनना है, करना क्या है? नहीं, यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न जैसे मॉनेटरी, फाइनेंशियल, इस टाइप के टारगेट्स होना ठीक है, जायज़ है। You are a CFO. I am a CFO with a very difficult management team, if you like. So, CFOs जो challenges होते हैं वो तो अलग किसी और टाइम पे बैठ के बात करेंगे। बट आप कुछ भी करने शुरू करिए तो एक चीज़ हमेशा ये होती है कि इट शुड बी फॉर द, इट कैनॉट बी ओनली फॉर योर बेनिफिट। इट विल बेनिफिट यू डेफिनेटली, बट you must have an aspiration for that to also benefit others, and that is the vision for us, to have a small role to play in creating the sort of capability in this country that puts us at par with the best in the world. ऐसा पाकिस्तान में जरा सा मुंह टेढ़ा करके तो देखें, हम यहीं से मिसाइल डालेंगे और किसी पे भी एक डॉट भर की भी निर्भरता ना हो when it comes to the safety and security of our of our country. So आज की डेट में अगर इस चीज़ में विस्तार में बात करें तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं इंडिया की, स्पेशली when it comes to defense on so many things. आप लोग को शायद मालूम भी ना हो, half of the fleet of Sukhois and MiG-21s that we have are grounded because हमारे पास spare parts नहीं, एंड पुराने को हम स्कैवेंज कर करके निकाल के 2-4 उड़ा लेते हैं। तो यही बेसिक विजन है। उसके साथ प्रोग्रेस फाइनेंशियली कंपनी के लिए और उसके साथ जुड़े हुए सब लोगों के साथ आना जायज़ है और होगा ही। दैट्स अ नियर सर्टेनिटी। ग्रेट। आप बताओ वेद के जो इन्होंने कहा उसमें आपका क्या सोचना है? हम लोग के लिए थोड़ी दुविधा है क्योंकि जो चुनौती है वो बड़ी है। तो जिस स्थिति में हम लोग हैं और जिस स्थिति में हम लोग जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं धरती का, वो थोड़ा सा इतना विस्तृत हो गया है कि इस पे कार्य हम लोगों का सिंगल फोकस है कि हम लोग नहीं, मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग अपनी बोतल साथ लेके चलते हैं जो कि सस्टेनेबल वाली बॉटल है, पानी भी फ्रॉम सस्टेनेबल सोर्स है। बहुत कोशिश करी, पानी पी लो, प्यास लगी थी, स्पेशली बाहर जाके गाड़ी से लेके। This is something as TIE we can support and say that we will not use any of these. तो धीरे-धीरे खुलेगी ना। ये खाली मार्केटिंग का कार्य है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मार्केटिंग की टोपी है। तो खैर हम लोगों का जो कार्य है वो चुनौती ऐसी है कि हम सोशल मीडिया में ड्रामा करके और खाली कहानी करके हम लोग कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो हम लोगों को तो विस्तृत तौर पे कार्य करना पड़ेगा और उसके लिए टारगेट्स भी लेने पड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स छोड़ देते हैं, बट उसमें बेसिक फंडामेंटल है कि हम इम्पैक्ट कितना कर पाएंगे। तो अभी हम लोगों के जो अगले 7-8 साल का जो गोल्स हैं वो है भारत को इस तरह सक्षम बनाना, भारतीय यूनिट को, कि हम लोग एटलीस्ट ये जो 3 दिशाएं हमने पकड़ी हैं उसमें हम लोग भारत
और मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट को हम लोग केटर कर पाएँ। फिर हम लोगों ने सेंट्रल अमेरिका पकड़ा है, तो उसका औचित्य है कि भाई हम लोग जो उत्तरी अमेरिका है उसके उस तरफ हम लोग सप्लाई कर पाएँ यही प्रोडक्ट्स, और जो फिर नॉर्थ अफ्रीका पे ध्यान दे रहे हैं ताकि यूरोप की तरफ हम लोग सप्लाई कर पाएँ। और फिर 8 साल के बाद का प्लान है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें फिलीपींस, वियतनाम में भी गन्ने की खोई है, उस पर कार्य कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं कि गन्ने की खोई तो उतनी है, लिमिटेड है, कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हम लोग कई और फाइबर्स, कई और टेक्नोलॉजीज पे कार्य कर रहे हैं। तो अब विश्व की जो सबसे बड़ी कंपोस्टेबल पैकेजिंग की लैब है वो हम लोगों ने स्थापित की है बैंगलोर में। तो उसमें भी लोगों का जुड़ाव देखिए। हमारे जो चीफ साइंटिस्ट हैं वो फिनलैंड बैठे हुए थे, भारतीय हैं, और उनको हम लोग किसी तरीके से 20 साल से दोस्ती थी, लेकिन उनको किसी तरीके से पटाया कि यार वापस आओ, क्या कर रहे हो फिनलैंड बैठ के। वो आ गए। जो वहाँ उनके साथ एक और चीफ साइंटिस्ट हैं वो स्वीडन बैठी थी, तो उनको ये समझाया कि यार क्या करोगे स्वीडन बैठ के, तो वो आ गई। तो टीम बड़ी अच्छी बन गई और ये लोग विचित्र चीज़ों पे कार्य कर रहे हैं। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन हो गया, अलग अलग टाइप के फाइबर्स हो गए, उस पर कार्य कर रहे हैं। तो क्या आगे निकलेगा हमें पता नहीं। तो नॉर्मली विजन ये रहता है अगले 1-2 साल में क्या निकालना है, अगले 5 साल में क्या निकालना है, और 10 साल में इंशाअल्लाह क्या हो सकता है। तो ये 3 टॉप टाइप के हर साइंटिस्ट के पास कार्य रहते हैं। तो इस पे कार्य चालू हो रहा है। तो उसके आगे जो 8 साल है उसके आगे देखा जाएगा क्या निकलेगा, उस पर कार्य करेंगे। तो अभी मोटा मोटी मार तो वी विल बी टॉकिंग, जब हम 2-3 साल बाद फिर से डिस्कस करेंगे तो वील टॉक अबाउट अ मल्टीनेशनल फ्रॉम अयोध्या, हेडक्वार्टर्ड इन अयोध्या एंड लखनऊ, एम्प्लॉइंग हाउ मेनी पीपल। हमारी CFO साहब के हस्बैंड बैठे हैं, वो यहाँ बैठती हैं लखनऊ में। तो अब पता नहीं लोगों का, अभी तो करीब 1,500 के आसपास लोग हैं हम लोग। अब देखते हैं आगे 3-4 साल में क्या होता है। An Indian multinational headquartered in Ayodhya. A big round of applause for. तो शशांक, अगले 3 साल और 5 साल का, फिर 10 साल का क्या विजन है? You are young, you're raring to go. क्या विजन है? कहाँ जाएगा कानपुर प्लास्टिक बैग? So the product that we do is a packaging product mainly used for food. Packaging वाले अगल बगल. Yeah. So but No, this is coincidence, huh? Totally coincidence. so we actually firmly believe that by using the right kind of packaging, you can reduce a lot of waste. So waste of material, waste of transport, waste of a lot of things. So the idea is to create solutions for complex products and be the number one in that. So that is what we are working on. So where are you seeing yourself in, let's say, 5 years? We can say there's an Indian At the top. at the top. So Indian multinational headquartered in Kanpur, but normally the CEO flies from Lucknow. तो अगर कभी ऑटोग्राफ लेना हो तो दिक्कत नहीं आएगी। हम बाहर खड़े हो जाएंगे एयरपोर्ट के कि शशांक सर एक ऑटोग्राफ, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो अभी in that country in South America, in that country in Southeast Asia. So I mean it will remain in Kanpur. अरे अच्छा, तो मत आजा। सुनने में आ रहा है कानपुर के एयरपोर्ट बहुत बड़ा हो रहा है आजकल। हाँ काफी बड़ा। लाइन नहीं मिलेगी लखनऊ वालों को। बट फिंगर्स क्रॉस, an Indian multinational in top 2, 3, 1 in the domain of packaging, flexible packaging. सर गाथा कहाँ जाने वाला है? मिलियंस हो रहे हैं ऑलरेडी, आगे क्या हो रहा है? दैट्स फाइन कि गाथा का यूज़र बेस 500,000 क्रॉस कर रहा है, हर दिन डाउनलोड्स आ रहे हैं। वी डोंट एक्चुअली फोकस्ड ऑन नंबर्स, ये इन्वेस्टर्स के काम है, उनके ऊपर छोड़ देते हैं। गाथा का जो विज़न है बेसिकली, हम आपकी कहानी, आपके शहर की कहानी, आपके छोटे से गांव की कहानी, वो किसी भी तरह, वो लिटरेचर हो सकता है, वो वहाँ का ब्रांड हो सकता है, वो वहाँ का कल्चर हो सकता है, कोई ऐसा एंशिएंट टेम्पल हो सकता है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। हम उन सबको प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। मैं बस एक चीज़ शेयर करूँगा, अभी IIT कानपुर में एक इवेंट हुआ था। सो वन इन्वेस्टर और वन कंपनी फ्रॉम साउथ कोरिया, उन्होंने हमसे बातचीत की और इनवाइट किया कि आप साउथ इस प्लेटफॉर्म को हमें दीजिए, हम साउथ कोरिया की टूरिज्म की कहानियों को गाथा पे लाना चाहते हैं। तो गाथा का जो विज़न है, गाथा का विज़न
किसी भी तरह की कहानी, किसी भी तरह का कंटेंट हमारा जो इंडिया का, और हालांकि ग्लोबल ऑलरेडी जाना शुरू हो चुका है, बट कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म और बिजनेस, इससे जुड़ा कोई भी कंटेंट इन असून आप गाथा पे मिलेगा। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, जहाँ पे काफ़ी कुछ सक्सेस मिल चुकी है। एक लैंग्वेज को बगैर कन्वर्ट, मतलब एक सिंपल सा बटन होगा, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सुन सकते हैं। इट इज द विजन ऑफ गाथा। All the languages of India. तो सपोज ओरिजिनली इट इज रिकॉर्डेड रविन्द्रनाथ टैगोर की बांग्ला में है, सो कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, बट वेरी सून आप सेम को मणिपुरी लैंग्वेज में सुन सकते हैं, आप हिंदी में सुन सकते हैं, आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। दिस इज द विजन फॉर गाथा। Thank you. That's heartening to know. So before I come to the last question, I would like to open the, this house to the audience. आप में बहुत सवाल आ रहे होंगे आप लोगों के मन में. So over to the audience. So we have, and please एक request है आप सबसे. Question को बहुत short रखिएगा. सीधा question and अपना एक quick introduction कि आप कौन है. Quick means quick होना चाहिए please. और आपका क्वेश्चन क्या है और किससे आपको आंसर चाहिए. ऑलराइट, तो इधर, ऑलराइट, टू द लेडी एंड देन लेडी इन सारी. ओके. Hi, good evening everybody. This is Anupriya Agarwal. I'm a brand consultant. I'm a Lucknow girl. A lot of people know me here. I always say that I'm a Lucknow born and brought up girl, and UP has made me what I am today. My question is for all the panelists. You can just pick up. When we were talking of barriers and advantages in UP, one of the advantage is that people here have the paying capacity. But one of the barriers is that they don't want to pay. So what would you like to say on this? Because this is something that as an entrepreneur even I have experienced, and I have actually crossed it. I was given one of the awards by Flow last week. So I believe that I have crossed it, but I would like to hear your views upon it. So your question is कि can you be clear about it? Yes. Is it more of an advantage or is it more of a barrier? The paying capacity of people in UP and the intention to pay. आप लेना चाहोगे इस क्वेश्चन को? आप, मुझे लगा आपने फॉर्म है. And Faka Inc. is also one of our clients. Oh, nice. They take wireless sets from our company. Nice, thank you. उद्यमी होने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि किसी और पे आप लांछन नहीं लगा सकते. ठीक है ना, कि ये मार्केट नहीं सही है, इसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं सही है, तो सुधार लो यार, अपने प्रोडक्ट को सुधार लो, अपनी सोच को सुधार लो अपने. क्योंकि क्या है कि जैसे ही आप दूसरे पे जिम्मेदारी डालते हो, आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है. आपने किसी और का अपना बीड़ा बांध लिया ना कि भाई ये इस वजह से नहीं है. कौन बोलता है भाई आप यहाँ बेचो, कौन बोलता है आप ये प्रोडक्ट बनाओ. तो उद्यमी होने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप कभी भी किसी पे दूसरे पे नहीं डाल सकते हो कि ये मार्केट नहीं सही है. मार्केट तो हमेशा ही सही है, आपका प्रोडक्ट उस पर सही बैठता है कि नहीं, ये आपको सोचना होगा आपको कहाँ बैठना है. तो अगर हम लोगों को कोई बोलता है आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो महंगे होते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम है ना. वो ग्राहक क्यों ज़्यादा पैसा दे, या प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, आपने प्रोटेक्शन की बात की, तो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम है. तो हमको वो ऐसे प्रोडक्ट इजाद करने पड़ेंगे, ऐसे मार्केट सोचने पड़ेंगे. कभी भी जैसे ही हमने अपना ब्लेम शिफ्ट किया, जैसे ही हमने बोला ये मार्केट सही नहीं है, पेइंग कैपेसिटी कम है, ये ग्राहक सही नहीं है, हम गलत स्लोप पे चले गए, फिसलू पे आप आ गए, फिर अब फिसलना चालू हो जाएगा. तो अपने ऊपर रखते, अपने जो भी कर सकते हैं उसको करते हैं और इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी. आपके पास कुछ थॉट्स आपके चल रहे हैं इस पे. यू वांट टू आंसर दिस? No, I completely agree with what Ved is saying, because the onus relies on you to have the right product, which is the right fit for that market. The market is always right. What it asks, that if you are able to deliver, whether it is, I mean, like we are talking technology, he's talking sustainability. That has to be the requirement of the market. So the answer is कि product market fit बनाना होगा. Cost is not. The answer is that this is not a disadvantage in UP कि paying capacity नहीं है या pay करना नहीं है. Paying capacity बहुत. We can have a heart. वैल्यू होना चाहिए. आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो उसके सामने वाले को क्या वैल्यू मिल रही है. नहीं, और नहीं तो अनुप्रिया आपके जैसे लोग चाहिए जो मार्केट कर पाए.
कई बार ये भी होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्ट सही है, मार्केट है, लेकिन हम ग्राहक को ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये क्यों आपको लेना चाहिए, आपको क्यों वैल्यू देगा। So I think we need people like you to be able to sort of do that. All right. So coming to the second question, he has the mic. गुड इवनिंग पैनलिस्ट, Over to Chetan. इनटू फूड प्रोसेसिंग। मेरा अभी क्वेश्चन आप सभी लोगों से है। आप लोग की सबकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश जो है जिसकी पॉपुलेशन अगर लार्जेस्ट कंट्री में होती तो शायद पाकिस्तान से ज़्यादा 5th लार्जेस्ट कंट्री होते। तो उसमें से जो हमारे कंट्री में सक्सेस स्टोरी, हमारी स्टेट में सक्सेस स्टोरीज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। हमारे पूरे यूपी में उतने फोर्थ लिस्ट में लोग नहीं जितने कि अकेले हैदराबाद से हैं। तो उस सिनेरियो को देखते हुए और जहाँ तक हम लोग की बात है, हमारी यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन बहुत लॉयल ज़रूर है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। आज वो अगर जॉब चेंज करना चाहें तो शायद उनके पास ऑप्शंस भी नहीं होते, इसलिए भी शायद वो लॉयल्टी चेतन भाई, आपका क्वेश्चन। भाई मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक वर्ड में आप बताना चाहें कि आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की जहां आप हैं, और एक वो चीज़ जो आप चेंज करना चाहेंगे इकोसिस्टम के लिए, सिर्फ सब लोगों से एक एक उसमें मिल जाए एक चीज़ जिसने आपको सबसे ज़्यादा मदद की, और एक वो चीज़ जिसको आप चेंज करना चाहेंगे जो आपके एजेंडा में सबसे ऊपर हो। So we can have a quick, answer to this from each one of you. काश मैं एक शब्द में बोल पाता, लेकिन एक चीज़ जो चेंज करना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा शिक्षा का जो स्तर है वो ओवरऑल, कहीं पे भी आप रहेंगे, अगर आप कहीं भी प्रगति देखना चाहेंगे किसी भी देश की, आप तो शिक्षा का स्तर आज का देख लीजिए, आपको 20 साल बाद का अग्रणी जो देश होगा वो आपको सामने मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर अपने को आगे प्रगति करनी है तो लगातार शिक्षा पे, और शिक्षा मतलब कि कॉग्निटिव थिंकिंग, नॉट कि भाई खाली शिक्षा है और सबको क्वांटिटी ऑफ शिक्षा नहीं, क्वालिटी ऑफ शिक्षा पे ध्यान देना होगा अपने को, और वो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और अपना प्रदेश, अपना देश आगे जाएगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? सॉरी, गॉट अस वेयर वी आर। हम अपने पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि दायरे दो होते हैं दुनिया में, जीवन में। एक स्टीवन कवी की एक बड़ी फेमस किताब है, उसमें ये कहा गया है कि चिंताओं का दायरा है, आप उसमें जी सकते हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यहाँ पे वो। दूसरा है प्रभाव का दायरा या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वो उस पर जी सकते हैं। तो कोशिश सब हो, मानसिक थोड़ा मेंटल फ्रेमवर्क खाली प्रभाव के दायरे में रहता है, कर क्या सकते हैं, तो हम लोग भी यही सोचते रहते हैं, तो कर क्या सकते हैं, बस वही करते रहते हैं। So कोई और आंसर देना चाहेगा इस पर? So I think the value system has helped me the most, and something that I would like to change is education and healthcare. Education. Yeah, and healthcare. Healthcare. I think what I would say is something that I think would like to change is मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हार्ड वर्क इज समथिंग जो उसका कोई और विकल्प नहीं है कि आप उस किसी और तरह से निकालेंगे। वो चीज़ आजकल के यंग जनरेशन में बहुत ज़रूरी है, टू नो दैट hard work is, it's 99% perspiration, such a cliche, but yes, 99% perspiration, 1% inspiration. And I think the biggest thing is possibly the belief and the conviction that you get, which comes from the value system, comes from the family, comes from people around you. वही लेके जाता है आपको जहाँ लेके जाना है, तभी आप करते हैं जो आप करते हैं। If I say कि मैं अपनी बात कहूँ कि मैं क्या चाहता हूँ जो चेंज हो, यूपी अपना राज्य है, एक फैमिली जैसा फील होता है, बट जो चीज़ कभी कभी नॉट ओनली यूपी, इनफैक्ट एवरीवेयर, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, हम लोग फेल्योर से घबराते हैं और उसकी वजह से हम बहुत सारे इनोवेशन को लूज कर देते हैं, हम मौके नहीं देते हैं, और ये चीज़ छोटे से शुरू होती है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आपका बेटा बेटी जो भी है, अगर हम वहीं से चेंज करना शुरू करें और उसको ट्राई करने के लिए मोटिवेट करें रादर देन रिजल्ट्स के ऊपर मोटिवेट करें, अगर फेल्योर से सीखने की हम फीलिंग उसके पैदा कर सके, मुझे लगता है बिगेस्ट चेंज होगा, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। Do we have more questions from the audience? We have
we are short of time, and I can see a lot of people are pretty keen. All right, Soumya. Good evening, everyone. My name is Soumya. I'm an entrepreneur in healthcare. We build comprehensive medical imaging solutions with AI and ML. And my question is to all of you. When you were starting your journey as an entrepreneur, as a young entrepreneur, what did you actually prioritize in terms of, creating the impact that you always wanted to create? Or in terms of, from a financial standpoint, did you prioritize your business model? Because today a lot of investors tell me that maybe you would do better in terms of business in North America than you would do in India, but I clearly see great opportunity and impact here in India. So it'd be nice, it'll be good to know what are your thoughts on that and how did you prioritize between impact and your business model? I think I am getting where you're coming from, and I know you what business you are in. She is in impact business, and also her challenges are creating profitability. She's in an IT enabled business. In fact, it is basis IT. तो IT आपका है, तो मुझे बताइए, इनकी खासकर इनको आप बता सकते हैं। कोई भी आंसर दे सकता है। आप भी इम्पैक्ट भी क्रिएट करना चाहते हो और एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आई थिंक दैट्स व्हाट इज देयर इन आवर माइंड। प्रॉफिट नो डाउट, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFO सब लोग बैठे हुए बगल में, बैग्स बुक्स तो सबसे पहले देखी जाती है, बट मुझे लगता है कि वो अपने आप बनती है। अगर आप ये डिसाइड कर लें कि जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप दे रहे हैं, वो जिसको दे रहे हैं उसको क्या वैल्यू मिल रही है और उसका पेन एरिया सॉल्व हो रहा है। एक बार वो पेन एरिया आपने सॉल्व कर दिया, वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो बुक्स तो अपने आप बनती है। फिर सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। फिर आप जब पेन एरिया पे फोकस करेंगे, देन इनोवेशन अपने आप आएगा, आप नई प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे। हाउ टू बेसिकली ओवरकम दैट पेन एरिया, वो समझिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम व्हाट आई डू इज, एक क्वेश्चन का जवाब एक पैनलिस्ट से मिल जाएगा, तो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Quickly we'll move to the next question. I think Snigdha had a question there. So hi. We'll come to the students as well. I think. Good evening, everybody. My name is Snigdha Mishra. I think everybody sitting in this room would have needed my help, probably needs it right now, or will need it in future. That's the kind of work that I do. I'm a psychologist and I'm a mental health professional. I am also a socialpreneur. And my question is, anybody at the panel who's ready to take it, is I work in social impact. It's very difficult to measure social impact when we're sitting in a group of entrepreneurs who drive impact out of money and very few who drive impact out of sustainability. Now, why I'm asking this specific question is because all four of you, when we spoke about vision, you spoke about impact, right? You did not speak about impact in terms of money, but you spoke of impact in terms of earth, in terms of human resource, and in terms of global sustainability. So, you guys are four potential investors in my foundation, which is... Oh, this is pitching. No, not pitching, not pitching. It's a genuine question. We'll have a pitch competition, definitely. It's a genuine question because mental health is a qualitative measure, right? And if I'm here coming back, having lived outside of Lucknow after 14 years, trying to build a mental health ecosystem within the community mental health space, we're starting with breaking stigma and creating more awareness, right? How do you then recommend me top 3 mindset that I as an entrepreneur, social entrepreneur should have, so that if I go and pitch to you, you would say yes. That's like we're interested in your project. You're going to work with youth in creating. That's a very innovative way of pitching, actually. Guys, all the startups, you should learn this. Any opportunity you shouldn't be missed. The question has been taken. Who takes it? 3 mindset, top 3 mindset that I should have when I'm looking at social impact as my vision, and asking you to give me money for my foundation. Who will take it? Anybody who's ready to give me money. I'm cool with it. सवाल हम लोग के पास काफी ये हमेशा सोच रहती है। I think सबसे बेसिकली अगर जो आपका जो सोच है उसमें हम लोगों को क्या चाहिए कि जो भी हम पूंजी जो है वो सोशल सेक्टर में हम लोग जो योगदान कर रहे हैं उसका मैक्सिमाइजेशन कैसे, ये हम लोगों का नजरिया रहता है।
तो अगेन इट कम्स बैक टू सिमिलर थिंग्स दैट वी वर सेइंग कि भाई जो जिसको जा रहा है वो कौन है, क्या उस पर फर्क पड़ेगा और कितना फर्क पड़ेगा, 3 चीजें, ठीक है। कौन, क्या क्या आपका फोकस एरिया क्या है, और किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट करेंगे और क्या कितना इम्पैक्ट होगा। ये तीनों मेजरेबल होने चाहिए आइडियली, और अगर मेजरेबल नहीं है, व्हाट यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल, तो वो हवाई फायर बहुत होता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसका माप कर पाएँ और इसका निकाल पाएँ कि एग्जैक्ट क्या है। तो हम लोगों पे, मेरे पास जब भी कोई आता है इस टाइप का, तो मेरे यही सवाल रहते हैं कि भाई, और हम लोगों के जो डायरेक्शन है उससे मिलता जुलता है कि नहीं। तो ज़्यादातर जो हम लोगों का सोशल इम्पैक्ट है 3 चीज़ों पे है। हम लोग जो कार्य करते हैं वो है शिक्षा पे, और स्वरोजगार या रोजगार पे, और प्रकृति पे। तो ये 3 ही क्षेत्र हैं, इसके अलावा हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। और हम खाली अपने क्षेत्र में करते हैं, जहाँ हमारी कंपनियाँ, हम बाहर भी नहीं जाते। हम बोलते हैं कि इसके इर्द गिर्द इतना करने को है कि हम दूर क्यों जाएं, हम आसपास के गाँवों में करेंगे ना। तो यही जहाँ जहाँ हम लोग कंपनियाँ खोलते हैं या ऑफिस खोलते हैं उसके इर्द गिर्द, और हम लोग उसी में वॉलंटियरिज्म भी करते हैं। सो एज अ रिसोर्स फॉर यू, अगर आपका कोई इम्पैक्ट स्टार्टअप है, कंपनी है, यू वांट टू पिच इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी में, इम्पैक्ट शिक्षा में, एजुकेशन में, और एम्प्लॉयमेंट, तो यू हैव एन इन्वेस्टर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। पैसे निकाल ही देंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यार, ये तो डिस्क्लेमर नीचे छोटा सा पॉइंट लगा दिया। ऑलराइट, फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, लास्ट में बहुत पीछे आप उनको दो, उनका हाथ खड़ा है। And go to the next session. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Karthikeya Pandey, and we are representing the entrepreneurship cell at University of Lucknow. And we have closely been associated with founders and various different startups at our club and cell. So I have a question for Ved sir, that my fellow anchor also mentioned, that way back in 2012 there was a burnout, there was a downfall in your life, in your business basically. So we as entrepreneurship cell have also noticed that this downfall comes in various different startups, wherein they scale up to, they have a very exponential growth during the early traction period, but after a passage of time there is a constant downfall. So at that burnout or downfall period, what are the things or factors that help you to be motivated and then start again from the scratch and build a multi-billion-dollar company? So this is what I wanted to know. धन्यवाद आपको। जो आई थिंक टर्न अराउंड जो है वो खाली एक है कि अपने जीवन का क्या क्या पर्पस क्या है वो मिल जाए अगर, तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप, कायनात जो है वो सिम्फनी बजाने लग जाती है, लोग आ जाते हैं, आइडियाज़ आ जाते हैं, चीज़ें आगे बढ़ने लग जाती हैं। आई थिंक बदलाव तो खाली एक ही था कि एक जीवन का पर्पस मिल गया, कारण मिल गया कि क्यों जी रहे हैं और क्या करना है। क्योंकि नहीं तो पैदा होंगे और चंद सालों बाद ऊपर चले जाएंगे या जहाँ भी चले जाएंगे, तो लेकिन उसके बीच का जो समय है वो समय ही है अपने पास। तो समय का कैसे सदुपयोग करना है, वो जैसे ही अपने को ये पता चल जाता है कि ये हमारा कारण है और दूसरे की तरफ या किसी कॉज की तरफ हम इस तरीके से योगदान करेंगे, तो जैसे ही वो मिल जाता है बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, वो अपने आप होने लग जाती हैं। दैट इज व्हाट आई वुड से। अगर कोई फिल्म बनाए यहाँ से, उसके लिए डायलॉग लिखोगे? ये ऑल्टरनेटिव कार्य है अमित, कुछ तो दिल के लिए भी करनी होती है चीजें। So last question from the student side. We are running short of time. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। लग चलो भाई। Good evening to one and all. Myself Paras Sarwana, proud student of IIM Lucknow. मैम, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, आप एक एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर पे गए हो जहाँ पे बहुत ह्यूज कंपनीज हैं, तो हाउ यू फेस योर कंपटीशन? और एक और चीज आपने ऐड की थी कि यू फाइंड डिफिकल्टीज टू फाइंड द स्किल वर्कर्स, सो हाउ यू डील विद दैट? होते हैं, जो कैपेबिलिटीज होती हैं, दोज आर ह्यूज। द मेन niche element that we have is the capability to manufacture the things that we do with those technologies. So सबसे बड़ा जो हमारा advantage है कि agility कहते हैं, agility in acquisition of technology, in absorption of technology, in commercialization of technology. जब आप वो बहुत speed से कर लेते हैं, तो even when there are much larger, so
Today, if you talk about the aerospace industry in the country, most of them are conglomerates like L&T, Mahindra, Tata Defence, all of that. PTC is the only company that sits along with them and talks about policy and does all of that. That's primarily because we are sitting in a place where we are capable of doing the things that we have promised to do. So that's the main. Wonderful. So this was the last question, but अभी सुन बहुत लिया. अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि सीखा क्या आपने. So quickly raise your hand. Who would like to tell क्या सीखा? Your one learning, please. कोई भी, anybody. Your one learning today. Anybody? किसी को कोई learning नहीं हुई यार, ये कैसे? All clear. There's a hand there. Give him. और इसके लिए आपको प्राइज भी मिलेगा. मुझे लग रहा है कि हिम्मत चाहिए थी इसके लिए शायद. So we'll Good evening, sir. हीरोज की तरफ से आपको healthy snack sample खाओ या ना खाओ वो अलग बात है. So my name is Arvind Pandey. I am from Jaipur Institute of Management. So my learning was, as I have heard so many stories of yours. What was your one learning today? So my learning was that never take your failure as a failure. Just take it as an opportunity. It will become a big success. Thank you. All right. Nice. Anybody else? All right. What is one learning today for you? Whatever you do, you should do from your heart. All right. Okay. The lady here, she raised. आगे front में. अपने फोकस पे डटे रहो. अरे sabotage हो गया. तो पीछे वालों को दे दो. एक बार quickly फिर आपको भी देते हैं ना. अपने फोकस पे डटे रहो. Focus पे डटे रहो. All right. आई एम डॉक्टर अस्मा फ्रॉम इंटीग्रल. मेरी भी एक लर्निंग मुझे लग रही है क्योंकि मैं फैकल्टी और टीचर हूँ. सबने एक बात ये कही कि अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी है. So we have to look inside instead of blaming others. That is a very significant learning for me as a teacher also. Great. कि मुझे अपने आप को improve करना, अपने प्रोडक्ट को improve करना. Thank you very much. Very nice. One last learning from this side up. अभी इस side में. That girl in the end. All right. And then go on to the next one. Myself Shrishi. I'm a grade 11 student in building a layer 2 blockchain. So my basic learning is no matter what happens, you should be unstoppable and you should keep going. Whatever you're doing, you should just do it. All right. So big applause, round of applause for all of us, all the mentors, the speakers here, and for all of you. Over to you, Aditya. So many learnings and very inspiring session. तो मैं अपनी learning भी एक share कर देता हूँ. To complete your point, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. So believe in yourself and believe in what you create is my biggest learning out of here. And the other things would be hard work, perseverance. That is actually going to take you to new levels. Thank you. Yes. So I would like to take a moment to express my sincere appreciation to all our panelists for giving your valuable time to us and being so generous in answering all our questions and telling us all about what you have been doing, the challenges that you have been facing. Thank you so much for that. So I would now like to call Mrs. Riya Punjabi and Mr. Shashank Manchanda to felicitate the speakers and Mr. Sachin sir also. A huge round of applause for everyone, for all the panelists out there. Thank you. And look, this memento has been personalized for you by Shashank. A warm round of applause for them. अरे कहाँ तक आपकी इम्पैक्ट जा रहा है देखिए आप. अरे that's so heartening to know. So gift from Malekya, gift from Shashank. His name is also Shashank. So Prakash Creations and a personalized memento diary with your photograph. एक फोटो है इसके साथ. If you can print a little, आपका फोटो उसमें भी दिखेगा डायरी में. आपकी डायरी में, आपके पास डायरी जो. पहले नाम के साथ फोटोग्राफ के साथ.
So we want you to remember us, remember TIE, the times to come. See? Yes. आपको होना है यहाँ पे प्लीज. Thank you so much, panelists, for taking time out and giving us your pearls of wisdom. I am sure that you must have learned a lot. और हौसला भी बड़ा होगा, I am sure, which I had claimed earlier. And of course, how can we miss Mr. Sachin sir? Riya ma'am, can you please hand over the gift to sir also? For me? Surprise, surprise. All right. ये तो क्या? All right. Thank you so much for being patient with us. We move on to the next session. Over to you, Aditya. I will be leading some more patients of yours also because we have 2 more sessions out here coming. The very, very interesting YouTuber we have with us who teaches us how to get your business into an automation mode. His name is Mr. Keval Kishan. That is going to happen after some time, but please stay with us for that as well.